Everyone, welcome back to my channel. Today I have a special guest. He is राखी. तो सबसे पहले राखी आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से हो, इंडिया में कहाँ से हो और अब कनाडा में कब आए और कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो? बताइए आप। ओके, सो बेसिकली मैं ग्वालियर से हूँ। एमपी ग्वालियर एक शहर है एमपी में। एंड मैं कनाडा आई थी 2024 फरवरी ऑन स्पाउस ओपन वर्क परमिट। बिकॉज मेरे हस्बैंड यहाँ पे स्टडी के लिए आए थे, तो मैं ओपन वर्क परमिट पे आई थी। एंड वी आर लिविंग इन प्रिंस जॉर्ज, एंड मेरे हस्बैंड एक 2 साल का कोर्स जो है वो परस्यू कर रहे हैं कॉलेज ऑफ न्यू कैलेडोनिया से, जो कि प्रिंस जॉर्ज में है। सो अभी ऑलमोस्ट 1 साल मुझे होने वाला है लाइक ऑन माय वीज़ा। ठीक है। And yes, and by profession, I am a chartered accountant. And in Canada, also, I'm working as an accountant. And back home, also, I worked as an accountant for, I have almost 6 years of experience in that domain. ओके ओके ठीक है। तो सबसे पहले बताइए हाउ यू केम इन टच विद मी, आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? Okay, so like I and my husband, we started preparing for IELTS like in 2020. हम्म। So उस time पे we used to use Telegram, like because we used to have conversation with people for speaking. So from Telegram I came to know about you. So ओके। एक स्टूडेंट था, उसने आपकी वीडियो का एक लिंक डाला था एंड ही टॉक्ड अबाउट योर बुक दैट इज अवेलेबल ऑन अमेज़न। हम्म। तो वहाँ से मुझे पता चला था, बट आई थिंक उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम ऑलरेडी निकल चुका था। सो आई कुडन्ट गेट इन टच विथ यू एंड आई कुडन्ट यू नो हम्म। have classes from you. But yes, when I came to Canada, when I started preparing for IELTS, so my husband and I, we decided, okay, कि for speaking, we'll go with your classes. ओके। So firstly, I want to tell all the viewers who are watching this video, thank you so much, Ashish. Only because of you, I got 8 bands in speaking, and I took your classes only for 15 days. I just watched all your YouTube videos. I took membership of your videos on YouTube, and that had helped me a lot because I used to listen to your videos every morning while I'm traveling to my work, while I'm cooking. Moreover, I purchased your book. That has helped me to build my strategy for speaking. And your the one-to-one sessions that I had with you, that were amazing. And whosoever wants to prepare for IELTS specifically for speaking, I would suggest, if you are getting issues in building confidence in terms of making in terms of basically the second part of speaking, wherein you have to speak on a topic. So I would suggest to go for your classes to everyone, थैंक यू सो मच। and I'm very thankful to you. Yeah. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अब आप बताइए, आप कनाडा में पहुंच गए, तो अपनी कनाडा की जर्नी के बारे में बताइए कि आपके हस्बैंड कनाडा में कौन से स्टडी वीजास पे आए थे? क्योंकि ना देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु So, वांट टू गो टू कम कनाडा, दे वांट टू बी इन yeah. योर प्लेस। तो क्या चल रहा है वहाँ पे? क्योंकि न्यूज़ तो बहुत डेंजरस आ रही है कि लोग पीआर नहीं मिल रही, जॉब नहीं है, लोग वापस आ रहे हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके हस्बैंड का स्टडी एक्सपीरियंस क्या है? और आपको 1 साल हो गया यहाँ पे, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है आपका? तो मेरे हस्बैंड आए थे 2023 दिसंबर। सो मेरे हस्बैंड यहाँ पे 2 इयर्स का डिप्लोमा लेके आए थे। उनका वीज़ा जो है 2023 में आ गया था, एंड देन ही लैंडेड हियर इन 2023 ओनली, बट उनका इंटेक जो था वो जनवरी 2024 में स्टार्ट हुआ था। एंड सिमिलरली व्हेन ही गॉट हिज वीज़ा इन 2023 अराउंड अगस्त, देन साइमल्टेनियसली आई अप्लाइड माय वीज़ा एज़ वेल। तो मेरा वीज़ा सितंबर में आ गया था, सितंबर 2023। ओके। And I came to Canada in February 2024. Just after a month, my husband came to Canada. So ठीक I है। landed here in February. And like my husband was on study visa. He's studying, he's still studying, and he doing the part-time job. And simultaneously, I started applying for jobs from India itself. So I got a job from India in the same domain which I was working back in India. So I am currently, working as an accountant. So ओके। that's what, the entire journey that I have so far, like in Canada. ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, वो आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि यू गेट अ जॉब ऑफर व्हेन यू वर इन इंडिया। वो आपको कैसे मिली? मतलब वो आप बता सकते हो अपने हमारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को, बिकॉज़ जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो Yeah. इंडिया में है, वीज़ा की वेट कर रहे हैं, तो वो जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं कनाडा में पहले से ही? जैसे आपको पहले So से जॉब। firstly, I would say visa is most important. If you have the visa, you have higher chances of getting a job, ठीक है। because every employer is not so supportive, or they don't want to get into those things कि वो आपको पहले से job offer दे दें, or if you are not sure whether you'll get a visa or not,
or if you land here or not. So I had a visa, Mm-hmm. and I started when I got my visa. I from that day itself I started making connections. I started first of all looking what all companies are available in the city which I'm landing in, एंड कौन कौन सी कंपनीज हैं, कौन कौन सी कंपनीज जो हायर करती हैं मेरे फील्ड में. देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग on each of those companies career portal. I started applying through Indeed, which is one of the very common portals in Canada where you can apply for a job. So I started applying through that portal itself. Moreover, I started making links like through LinkedIn, and on Facebook as well. I started sending requests to people so that I can request them if they can refer me for a job, or if they are the owner of the company, if they can hire me for a job. So luckily, I got someone who gave me the job in the same domain, and when I landed, yeah, I joined the same thing. So I won't say that it is 100% possible, but this is one of the possibilities that you can have. Like you can try from India if you have the visa. That is the most important thing that makes your like chance very, I can say, very strong. So if you have, you can start making links. You can start sending requests to people. You can make a ready-made message for your experience, your study, and about your weaknesses, your opportunities, your strengths, and then you can reach out to people, and you can say that okay, you are looking forward to a job, and if they are interested, they'll come forward and they will have your interview if they are interested, or if they feel that you really have that capability to become an employee of their organization. So that's how I started. And I also had back home, I also have 6 years of experience, as I mentioned. So उसमें काफी ज्यादा मतलब वो काफी ओके, ज्यादा मेरा हेल्प करा. ठीक है। और एक और चीज की हाँ हम्म। मतलब यहाँ पे है, इस डोमेन में काफी ज्यादा है मतलब जॉब्स, तो वो भी एक एडवांटेज था मतलब कि वो जॉब मुझे मिली. आप बोल रहे हो कि जो सीए इंडिया में है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कनाडा में है, जो सीए फील्ड से हाँ रिलेटेड है। मतलब मैं ये बोलूंगी कि नहीं, सिर्फ सीए नहीं बोलूंगी, मैं जॉब अपॉर्चुनिटी सबके लिए है. अच्छा है। मतलब चाहे वो सीए हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, नर्स हो, या फिर इवन एक ट्रक ड्राइवर भी है. मतलब अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ पे एंडलेस है. बट हम न्यूज में इतना सुन रहे हैं कि जॉब नहीं है, लोग मतलब रो रहे हैं, लोग कनाडा बोले वापस चले जाओ, तो वो कैसे हैंडल कर रहे हैं? और आपके हस्बैंड ही इज ऑन अ स्टडी परमिट, तो उन्हें और उनको पार्ट टाइम जॉब कैसे मिली? बिकॉज यू हैव ओपन वर्क परमिट, तो यस. उनको पार्ट टाइम जॉब कैसे मिली? उन्होंने भी इंडिया से ढूंढी कि वो कनाडा जाके मिली उनको? उनको कैसे मिली? He also tried from India. He started, making links through LinkedIn and Facebook. He got someone who gave him a job when he landed, but it took time. But my husband also, he like it took him 2 months to get a job, to land a part-time job here. आप आए थे पहले से जॉब लेके, आपके हस्बैंड को 2 महीने लग गए, सो But I also didn't join the job like इंस्टेंटली immediately. नहीं आया। Instantly I didn't, because you get an offer, but employer is not sure whether you'll come. ओके ओके, So you have to come, and then you have to contact with them. Okay, we had a discussion, we had a job offer, so ठीक, that kind of thing. So my husband, it took him 2 months, then he got a job. ओके ओके So job ऐसा नहीं है, पार्ट टाइम जॉब मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट मिल ही जाती है सबको. हाँ, बस टाइम जरूर लगता है ओके। थोड़ा सा. जैसे अब आपको 6 ईयर ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली, तो कंपेयर टू इंडिया एंड कनाडा में डिफरेंस क्या है? मतलब जो लोग यहाँ पे अच्छी जॉब्स पे हैं, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी, उनको वहाँ पे एक सेकंड, उनको वहाँ पे आना चाहिए जॉब के लिए। मतलब क्या डिफरेंस फील किया आपने इंडिया के जॉब कल्चर में और कनाडा के जॉब कल्चर में? आई वुड से एज अ होल, नॉट इवन फॉर माई प्रोफेशन, लाइक एज अ होल अगर मैं देखूँ तो दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं. फर्स्टली इन टर्म्स ऑफ वेजेस. हम्म, सो वेजेस को लेके काफ़ी पैरिटी है यहाँ पे. लाइक ऐसा नहीं है कि अगर कोई नर्स है तो किसी को इंडिया में होता है ना कि किसी को कम मिल रही है, किसी को ज़्यादा. बट एटलीस्ट जो मिनिमम वेज है वो आपको मिलेगी. सो दैट ओके, इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज इफ समबडी इज गेटिंग अ मिनिमम वेज, he or she can at least spend that much, like a livable life can be assured, कि आप एक एटलीस्ट एक रेंट एक रूम ले सकते हो, एंड यू कैन स्पेंड फॉर योर ग्रोसरीज एंड स्टफ. सो एक चीज ये अच्छी है. एंड सेकेंडली इज वर्क लाइफ बैलेंस. ठीक है, Work life balance as in, like, if you are working for 8 hours, you'll be paid for 8 hours.
ओके। If you're working for 10, you'll be paid for 10. And after that, nobody will gonna, will message you or, will call बॉदर नहीं you that करेंगे आपको। what, yeah, bother nahi karenge, what is the status of work. So that is, these are the two things which are, which differentiates between the working culture of India versus Canada. ओके, ओके, ठीक है। तो करंटली अब पीआर का सिचुएशन क्या है यहाँ पे? मतलब कनाडा में वैसे न्यूज़ बहुत आ रही हैं कि भई वापस भेज देंगे, पीआर नहीं मिल रही। पीआर का सिस्टम क्या है? एंड जैसे आपके तो ओवरऑल 8 हैं, यू हैव मोर देन 8,777। तो क्या सिस्टम है यहाँ पे पीआर का? अगर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि 2 ही चीज़ें होती है स्टूडेंट के माइंड में कि एक तो वहाँ पे जॉब कैसे मिलेगी, उसके बाद पीआर। नोबडी वांट्स टू कम बैक टू इंडिया, वो तो 100% है। तो ये सिनेरियो अब क्या है यहाँ पे स्पेशली इन 2025 में आपने क्या नोटिस किया इन 1 ईयर, क्या प्रोसीजर है? क्या चेंजेस हो चुके हैं? क्या ईज़ी हुआ, क्या डिफ़िकल्ट हुआ आपके लिए? सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज़ कि अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई भी मत आओ, मैं तो बोलूँगी बिल्कुल आओ। बट बिना रिसर्च के मत आओ। मतलब अगर आप अभी भी सोच रहे हो आने की, तो आप बेशक आओ, बट आप एटलीस्ट चेक कर लो कि आप कौन-सा वाला कोर्स लेके आ रहे हो। ठीक है। पहले क्या था कि आप कोई भी कोर्स लेके आ जाओ, हुँ, हुँ। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी आपको चेक करना है कि कौन से वाले कोर्सेज़ में कौन-सी फ़ील्ड में अपॉर्च्युनिटीज़ हैं एंड पीआर भी है। फॉर इंस्टेंस इफ आई से कंस्ट्रक्शन, हुँ, हेल्थ केयर, हुँ, अर्ली चाइल्डहुड, हुँ, आईटी। हुँ। अगर आप ये चीज़ें इनका कोई कोर्स लेके आ रहे हो, देन यू आर एट अ गुड पोज़ीशन। ओके, बिकॉज़ उसमें आपको जॉब भी बहुत हाई पेइंग जॉब मिलेगी और प्लस आपको पीआर भी बहुत ईज़ी हो जाएगी। बट अगर आप फिर वही कोर्स लेके आ रहे हो, कुछ भी बिज़नेस मैनेजमेंट कोर्स, इवन एचआर कोर्स, so ओके। that won't make any sense because उसको लेके गवर्नमेंट के कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी नहीं है। प्लस गवर्नमेंट अभी रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है कि मतलब कि केवल जो हाई स्किल्ड जॉब्स हैं, लाइक जो मैंने मेंशन की, मोस्टली वो उनको ही प्रेफ़रेंस दे रहे हैं। ठीक है। तो लाइक इफ यू वांट टू कम देन इट्स गुड, बट जस्ट डू सम रिसर्च। एंड पीआर का तो ऐसा है कि लाइक इट्स सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। जैसे कि मैंने बोला कि डिपेंड करता है कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आपका कितना आइल्स में स्कोर है, आप कौन-सी फ़ील्ड में फ़ॉल करते हो। बिकॉज़ अभी एसडीएस कैटेगरी भी बंद हो चुकी है, हुँ, जिस हुँ, वीज़ा हुँ। पे मेरे हस्बैंड आए थे। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एसडीएस कैटेगरी वीज़ा पे ही आते उसी हैं पे आता था। स्टडी के लिए। हुँ, वो भी बंद हो चुका है। इवन स्पाउस वीज़ा, आई वुड से कि स्पाउस वीज़ा का ऐसा है कि अभी कोई भी अगर स्टूडेंट है, वो स्पाउस वीज़ा तभी अप्लाई कर सकता है अपने स्पाउस के लिए, अगर वो मास्टर्स, डॉक्टरेट डॉक्टरेट या फिर कोई प्रोफ़ेशनल डिग्री कर रहा है। ठीक है। अदरवाइज़ वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो वो सारी चीज़ों को कंसिडर करके, इफ यू आर मैरिड, इफ यू वांट टू टेक योर स्पाउस विद यू, देन मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग फॉर अ बैचलर कोर्स और अ मास्टर कोर्स और अ डॉक्टरेट कोर्स। और अगर आप खुद भी अकेले आ रहे हो, देन मेक श्योर दैट यू चूज़ द राइट कोर्स सो दैट you can ensure your PR, in the future after you complete your studies. मतलब आपका मेन कहने का मतलब है कि अब कोई भी मुँह उठा के कोर्स लेके कनाडा मत आओ। चूज़ अ Yes, प्रॉपर yes, कोर्स विद प्रॉपर रिसर्च। सिर्फ ये मत देखो कि वीज़ा मिलेगा वहाँ पे, फिर वहाँ पे mm, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी होनी चाहिए और जो आपने 4-5 फ़ील्ड्स बताई, उसमें आपके हिसाब से ज़्यादा चांसेस हैं फॉर जॉब mm, अपॉर्च्युनिटीज़। और ओके, तो yes. उसके बेसिस पे यू विल थिंक पीपल विल गेट पीआर। मतलब हर बंदे को पीआर नहीं मिलेगी, जो अच्छी फ़ील्ड में उनको मिल जाएगी। दिस इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? Yeah, I can say, yeah, that because now LMIA points, 200 points, 50 points both are removed. हुँ, हाँ जी, तो वो अब भी है। LMIA का भी कोई कोई वो नहीं है। तो मतलब अभी ये चॉइस है कि आप जो भी कोर्स लेके आ रहे हो, अच्छा कोर्स लेके आओ, ओके, रिसर्च करके आओ। ओके। क्योंकि जैसे स्टेम कैटेगरी थी, आई डोंट नो स्टेम, क्योंकि मैं कोई मतलब इमिग्रेशन प्रोफेशनल तो या लॉयर तो नहीं, हूँ हाँ, नहीं, मुझे बिल्कुल। इतना नॉलेज नहीं है। बट हाँ, जो है इन इन जनरल जो भी हम सुनते हैं, आई एम ऑल्सो हियर फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, सो मैं भी रिसर्च करती हूँ, तो हमें देखने को मिलता है कि हाँ, मतलब क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या सिनेरियो है, गवर्नमेंट किस चीज़ का ड्रॉ निकाल रही है। ओके, हेल्थ ओके। केयर ड्रॉ, ट्रेड ड्रॉ निकल रहे हैं अभी। फ्रेंच, इफ यू आर वेरी गुड, लाइक इफ यू आर वेरी एंथुसियास्टिक, तो हुँ, आप फ्रेंच की तरफ जा सकते हो, व्हिच इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट या पीपल आर स्टिल डूइंग दैट। फ्रेंच ड्रॉज़ आर कमिंग, टेक ड्रॉज़ आर कमिंग। ओके, ओके। सो या ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं। और मतलब जो एक नया इंसान आ रहा है यहाँ पे, मतलब व्हाट विल बी योर वन लाइन गाइडेंस कि ये चीज़ ज़रूर करके आओ, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे कनाडा में। क्योंकि इस टाइम न्यूज़ के हिसाब से तो वही है, कनाडा इज़ नॉट अ गुड कंट्री एट द मोमेंट। तो क्या आप बोलोगे, क्या चीज़ सीख के आओ या क्या किस परसेप्शन से आओ कनाडा में? अगर जो नया बंदा आ रहा है यहाँ पे, नया स्टूडेंट आ रहा है यहाँ पे, स्टूडेंट वीज़ा पे। I will give only 2 suggestions. Firstly, just
take the right course. Mhm. And secondly, don't get disheartened if you don't get a part-time job even for 6 months, ठीक है। because eventually you'll get a job. Because I know I can feel the pain of people, हुँ, you हुँ। know, लाइक फॉर जॉब नहीं मिलती 6-6 महीने तक लोगों को। बट मतलब मैं ये बोलूँगी कि मतलब बोलना आसान है, बट फिर भी आई वुड एनकरेज कि आप डिसहार्टेंड मत हो अगर नहीं भी मिलती है, बट वो मिल जाती है, ऐसा भी नहीं है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है जिनको 6 महीने बाद भी 6 महीने तक नहीं भी मिली, बट 7वें महीने में आके उनको भी जॉब मिली है। तो मतलब ये चीज़ें बस मतलब इन द मतलब करें डोंट लूज़ होप। मतलब आप बोले होप, डोंट लूज़। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और कोई ऐसी स्किल जो आप वो रेफर कर सकते हो कि स्टूडेंट्स ये सीख के आओ जो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू सर्वाइव इन कनाडा टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब। अभी तो पार्ट टाइम की बात कर रहे हैं सपोज कि ऐसी कोई स्किल अगर आपको लगे कि अगर ये करके आओगे तो आपको थोड़ी जॉब जल्दी मिल जाएगी कनाडा में, पार्ट टाइम जॉब है कोई ऐसी स्किल आपके हिसाब से माइंड में? स्किल्स तो बहुत सारी है, मतलब यहाँ पे स्किल की बहुत वैल्यू है आई वुड से। मतलब काफ़ी लोगों को जैसा है कि किसी को सैलो का आता है, अगर हुँ, स्किल है वो चीज़, तो वो भी यहाँ पे मैंने लोग 2 लोगों को देखा है, वो खुद भी कर रहे हैं, मतलब अपना घर पे घर भी में। करते हैं और मतलब उनको मिल जाती है जॉब। वो भी बहुत अच्छी है कि स्किल है अगर आपको आती है तो। और आई थिंक यू शुड बी ओपन टू एवरीथिंग। आई थिंक मतलब स्किल तो है ही, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, बट येस, यू शुड, यू शुड बी। एंड वन मोर थिंग, ड्राइविंग। सो इंश्योर कि ड्राइविंग आपको आती हो, ओके, ओके, ओके। मतलब नहीं आती है तो सीख के आना। ठीक है, तो मतलब आपके अकॉर्डिंगली सैलो और ड्राइविंग इज़ द 2 इम्पोर्टेंट स्किल्स तो आपको थोड़ा एज मिल जाएगा, मतलब थोड़ा अपॉर्च्युनिटीज़ और यू हैव हाँ, टू बी ओपन फॉर एवरीथिंग कि कुछ भी काम मिले कर लो, नखरे नहीं करने कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। राइट, राइट। ठीक है, एंड ठीक है। ड्राइविंग का इसलिए बिकॉज़ ऑफ वेदर, स्टूडेंट्स मतलब जब कमाने लगते हैं तो वो खरीद ही लेते हैं गाड़ी। हुँ, एंड दूसरा, यू हैव अपॉर्च्युनिटीज़ इफ यू हैव टू ट्रैवल समवेयर वेयर देयर इज़ नो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, you can easily commute. You can do 2-3 jobs simultaneously if you have a, own vehicle. Or ड्राइव even करते people, हो। I have seen students, they are doing DoorDash, they are doing Skip the Dish, हुँ, हुँ। and they are at least doing a survival. तो at least आप उतना तो कर ही सकते हो। तो ड्राइविंग अगर आप मतलब इंडिया से सीख के आओ, मैं तो ये बोलूँगी कि फिर यहाँ पे आके you can give your test on student visa, like, you are allowed to drive for some time, depending on, what is the rule for every province has a different rule. So वो डिपेंड करता है, बट हाँ, ये चीज़ मैं बोल के आऊँगी, एंड यू शुड बी ओपन टू एवरीथिंग। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम राखी। ठीक है, आई विश यू द बेस्ट कि आपको भी जल्दी-जल्दी पीआर मिले। फिर आपको दोबारा बुलाएँगे जब आपको पीआर मिलेगी ताकि आप और गाइड कर सको स्टूडेंट्स को। एंड आप कनाडा में कहाँ रह रहे थे? प्रिंस बिल्कुल, जॉर्ज, कौन-सी प्रोविंस में है ये? बीसी। बीसी में, ठीक है। अगर इफ समवन वांट्स हेल्प फ्रॉम यू, कैन आप गाइड कर सकते हो या स्टूडेंट को? फॉर श्योर। ठीक है। Yeah, for sure. Like whatever help I can do, like in terms of guidance or anything हुँ, I can do, I'll do for sure. ठीक No problem. I'm still on the same page. I'm like, I'm also, here, like I'm on a temporary visa. I'm still not permanent. है। So, I am on the same page with people, having the same thing right now. So I can do any sort of help if somebody, wants. So श्योर। that's, तो अगर किसी yeah. को इनकी राखी जी की हेल्प चाहिए बीसी में प्रिंस जॉर्ज में, विल जस्ट टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, इनकी आईडी भी डाल दूँगा अगर ये बोलेंगे तो। यू विल कनेक्ट विद हर और विद मी कि यू नीड असिस्टेंस एंड वी विल ट्राई टू हेल्प एज़ मच एज़ वी कैन। ठीक है? Yeah, no, for sure. Yeah. थैंक यू सो Thank मच। you so much, Ashish, हैव for अ ग्रेट me डे। having you in your video. Yeah, thanks. या Bye. टेक केयर, बाय-बाय। Bye.